Good evening, sir. Thank you for joining this session. We are live on Facebook, and the session is also being recorded for students' welfare. Students can get this recording on YouTube once the session is over, or write to SuperProfs.com at support@SuperProfs.com for the recording if they cannot find it. Professor Sanjay Welkins has been associated with SuperProfs for quite some time, and he teaches for CA Final, FR, CFR, IFRS, all these subjects. All right, sir, we can start now. Hello. I'm ready. Hello, so we are starting this particular session today now. Evening as usual, and hope that each one. Hello, it's a very lovely good evening as usual, and hope that each one of you are absolutely fine. We pray to the Almighty as always to keep you absolutely in fine shape, in fine spirits, and of course in good health and hale and hearty. And at the same time, we pray for your success. And we also pray to the Almighty to make you reach, as the saying goes in English, the hallowed break-ins of success. So on such note, we begin this live session. This is the first one in the series. So overall, there are going to be 3 sessions. This is the first one meant purely for the CA final students, and of late I have been actually thronged with lots of messages actually with respect to the preparation of the IND AS. So I thought better to conduct a session for each one of you so that you can drive some what we call benefits and get some inputs actually how to prepare as is written, and you might have seen by now flashing on your screen, that is IND AS Preparation Strategy. This particular, of course, session will be mostly in Hindi, although I started off in English slowly and move steadily. I will move over to the Hindi, and don't worry about that. And at the same time, as I was talking about this particular fact, that I was receiving lots of messages from the student fraternity. So how to prepare for the IND AS, please conduct a session on the same. So we have heeded to your what we call request, and for the same we are conducting this particular session. Before we start, let me also tell you that this particular session will be of 30 minutes near about, and last 4, 5 or 10 minutes we have kept for your queries. So please, you are requested in between. You should not what we call write any queries. And once the session is over, you can write and put up your queries, and which will be answered to, no doubt about that. But we on our part, as usual, shall try that you will not nurse any what we call query. Correct? So here we go and start this particular session. तो बेटे जैसा कि मैंने कहा कि ऑफ लेट बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर कैसे इंडियस का प्रिपरेशन करना है, कैसे इंडियस के लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. तो इसी संदर्भ में मैंने ये सेशन जो है कंडक्ट करा है. करेक्ट? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फिर होप दैट ईच वन ऑफ यू आर एब्सोल्युटली प्रेजेंट ओवर देयर. And today, honestly speaking, you need not require to write anything because most of the things I have already written over here. These sheets will be provided to you. You can contact the SuperProfs in this regard, and they will provide you the sheets in case if you need. Correct? So start करते हैं IND AS Preparation Strategy. But strategy का basically मतलब क्या होता है? Strategy का basically मतलब है plan of action. A plan of action किस चीज के लिए? Which is directed to achieve a long-term goal. जब हम किसी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हम जो प्लानिंग करते हैं, करेक्ट, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेटेजी. वर्ड स्ट्रेटेजी कहने में बहुत आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है.
इनफैक्ट किसी भी चीज की जब आप स्ट्रेटेजी करते हैं तो स्ट्रेटेजी करते समय पहले तो बहुत जरूरी है कि हमें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसकी निटी एंड ग्रिटी यानी कि उसकी प्रत्येक सूक्ष्म रूप का ज्ञान होना चाहिए, तो हम एक अच्छी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स से, क्योंकि टाइम कम है इसमें मैं प्रीफेस जो है थोड़ा सा कम रखूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इंड एस इन प्रिवलेंस। सबसे पहले तो मैं यहाँ बता दूं, इंड एस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आज हम सिर्फ इसके बारे में बातचीत करेंगे कि इंड एस के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से इंड एस आपको पढ़ने हैं, कौन से इंड एस आपको छोड़ने हैं, किन इंड एस पे आपको ज्यादा स्ट्रेस करना है, किस तरीके के क्वेश्चन हम इंड एस से जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बच्चों की जो सबसे बड़ी क्वेरी होती है वो ये, सर इंड एस बहुत बड़ा सेक्शन है तो इसको कैसे कवर करा जाए। लेट्स हैव अ लुक। फिर सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से इंड एस हैं जो प्रिवेलेंट हैं। प्रिवेलेंट का मतलब जो प्रैक्टिकली लाइफ में इस वक्त हैं, जो नोटिफाइड हैं, जो ऑलरेडी प्रिवेल कर रहे हैं। तो इंड एस 101 ऑफ कोर्स, और इस इंड एस का ताल्लुक जैसा कि आप देख ही रहे हैं, दैट इज फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है, करेक्ट। इसी तरह आपको ये चीज, ये कॉलम अभी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ही पढ़ूंगा। उसके बाद फिर है इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंड एस 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके आगे मैंने एक लाइन लिखी है, नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। इसका मतलब बाद में हम देखेंगे, इनफैक्ट बाद में क्या देखेंगे, आप यहाँ पर क्रॉस आउट कर लें, करेक्ट, या आप अलग से एक शीट ले लें, पेन ले लें और साथ में लिख लें कि इंड एस 104 यू नीड नॉट रिक्वायर टू डू बिकॉज इट इज नो मोर ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब पॉइंट ये है कि व्हाई इट इज नो मोर ए पार्ट ऑफ सिलेबस। सबको ये पता तो है कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है उसका सीधा सा कारण है कि अभी बहुत से इंड एस ऐसे हैं जिसपे कुछ वर्क चल रहा है। तो अभी जो इंटरनेशनल बॉडीज है इस पे वर्क, रीवर्क, इनफैक्ट फिर रीवर्क करते जा रहे हैं, तो इसमें अभी बहुत सी चीजों को लेकर के कंट्रोवर्सीज है। तो यही वजह है कि अभी इसको कोर्स का हिस्सा नहीं बनाया गया। हालांकि पहले जब ये शुरू में था, आज से करीब 1 साल पहले, ये कोर्स का हिस्सा था, लेकिन फिलहाल ये कोर्स का पार्ट नहीं है। इंड एस 105 उसके नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इंड एस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। अभी आप इस सेंटेंस को यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ना, इसको अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ देखें। इंड एस 116 लीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट की बात हम बाद में करेंगे। इंड एस 106 एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। इसके आगे आपने क्या देखा कि मैंने फिर से क्या लिखा हुआ है, इसके आगे मैंने लिखा है नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। इसका मतलब ये इंड एस भी आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सेगमेंट, इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, और क्यों नहीं लिखा है उसके बारे में चर्चा अभी मैं कुछ लम्हों के बाद करूंगा। उसके बाद है ऑफ कोर्स इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इंपॉर्टेंट है या नहीं। इंड एस 111 जॉइंट अरेंजमेंट, इंड एस 112 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, देन इंड एस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, इंड एस 114, करेक्ट, मैं थोड़ा सा इधर की तरफ हो रहा हूं, रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं कि आजकल जो ये सेशन है मैं फिलहाल अपने घर से कंडक्ट कर रहा हूं, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट में, प्रोफेशनल स्टूडियो से मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल इसमें कमी हो, जिसके लिए हम नो डाउट अबाउट दैट रिग्रेट भी करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जहां तक कंटेंट का सवाल है उसमें किसी तरह की कमी नहीं होगी। रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स, इसके आगे मैंने लिखा है नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। इसका भी रीजन वही है क्योंकि इस स्टैंडर्ड पे भी अभी इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो काम कर रही हैं, करेक्ट। इसका मतलब ये अभी प्योर फाइनलाइज्ड फॉर्म में नहीं है। उसके बाद अगली शीट में फिर मैंने लिखा है 1 का मतलब ये सीरियल नंबरिंग नहीं है, ये इंड एस 1 है। इससे पहले इंड एस 101 था जो कि फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आपने नोट करा कि जो इंड एस 100 की सीरीज में है, तो 101 से लेकर के 116 तक कोई भी स्लॉट अनफुलफिल्ड नहीं है, यानी कि 101 भी है, 102 भी है, 103 भी है, 104 भी है, एंड सो ऑन टिल अप टू 116 तक सभी स्लॉट्स फिल है, करेक्ट। आइए अब 1 से लेकर के 41, याद रखें कि 41 से लेके 100 तक फिलहाल प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने क्या कहा, 42 से लेकर के, यानी कि 41 के बाद 42 इंक्लूडिंग 42 से लेकर के 100 तक, यानी कि 42, 43, 44, 99, 92,
कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में स्टैंडर्ड नहीं है। पहले तो ये भी ध्यान होना चाहिए। बहुत से बच्चे, एक बच्चे ने तो मेरे से क्वेश्चन करा, सर आपने इंड एस 42 नहीं कराया। बाबा इंड एस 42 कहाँ से करा दे, इंड एस 42 तो अभी है ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि 42 से लेकर के 41, 1 से लेके 41 और उसके बाद 100 से लेके 116 के बीच में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। लेकिन 41 के बाद यानी कि 42 से लेकर के 100 तक कोई भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल लाइफ में अभी नहीं है। आइए फिर अब हम आते हैं ऐसे स्टैंडर्ड्स जो डबल डिजिट्स में हैं या सिंगल डिजिट में हैं, जो 100 की सीरीज में नहीं है। AS1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद है 2 इन्वेंट्रीज, 7 है। अब मैंने 2 के बाद 7 लिखा, यहाँ कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कहीं बच्चे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस 3, 4, 5 भूल तो नहीं गए हैं। तो ध्यान ये रखना कि अभी प्रैक्टिकल लाइफ में 3, 4 और 5 और 6 कोई भी इंड एस नहीं है। करेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज 7, उसके बाद 8 है अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर। यहां मैं एक दो बातें तुमसे कहना चाहूंगा। जिन लोगों ने हम लोगों के कोर्सेज को सब्सक्राइब करा है, जरा इस पॉइंट पे आप जरूर ध्यान दें। मैं एक रेड पेन पहले ले लूं, ये मैंने रेड पेन पकड़ा। इसके आगे मैंने लिखा तो है इंपॉर्टेंट, करेक्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। खास तौर से जिन लोगों ने हमारा हिंदी वर्जन कोर्स खरीदा हुआ है वो ध्यान रखें कि इस स्टैंडर्ड को अभी रिवाइज करा जा रहा है और बाय नेक्स्ट वीक तक ये अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप रिवाइज फॉर्म में इसको पढ़ें। करेक्ट। इसी तरह से फिर उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इसको भी मैं रिवाइज कर रहा हूं और रिवाइज करने के बाद आप इसको पढ़ेंगे। ये 2 स्टैंडर्ड, इनफैक्ट AS1 मैंने ऑलरेडी इसमें अपलोड कर दिया है, शायद अगर नहीं हुआ है तो आप उसको बाद में पढ़ना। अगर मैं अपलोड करूंगा तो उसमें मैं लिखूंगा बकायदा रिवाइज्ड। इज इट क्लियर टू यू? जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये रिवाइज करा जा चुका है। तो कुछ स्टैंडर्ड जो 1-2 थे वो मैंने रिवाइज करने थे, तो जैसे कि उसमें एक AS1 है, एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है। बीच में बहुत सारा काम था। अगर आप लोग यूट्यूब पे भी मुझसे क्या बोलते हैं टच में है, कनेक्टेड है, तो आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी चीजें मैं उसमें अपलोड करता रहता हूँ और बीच में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करे भी हैं। और मैं बात कर रहा था AS1 की। अभी फिलहाल आप क्या करना, फॉर द टाइम बिंग AS1 और AS7 को डेफर करके रखना। अभी इसको ना पढ़ना, इसको 1 वीक के बाद पढ़ना, क्योंकि रिवाइज्ड फॉर्मेट में जब अपलोड हो जाएंगे देन इट विल बी बेटर। करेक्ट। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 ये मैंने रिवाइज कर दिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये भी मैंने रिवाइज्ड फॉर्म में अपलोड करा हुआ है। अब आप रिवाइज्ड पार्ट को पढ़ें। इज इट क्लियर टू यू? ये दोनों मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। उसके बाद जितने भी स्टैंडर्ड है वो सारे मैंने रिवाइज्ड फॉर्म में ऑलरेडी डाले हुए हैं। अब यहां पर एक स्टैंडर्ड है 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा है कि नाउ रिप्लेस बाय इंड एस 115। इनफैक्ट इंड एस 11 और इंड एस 18 जिनका कि ताल्लुक रेवेन्यू से था, ये कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू से रिलेटेड था, इजंट इट और नॉट? तो ये स्टैंडर्ड जो है अब इंड एस 115 का पार्ट बन गया। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड अब प्रैक्टिकल लाइफ का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड अब डिलीटेड है। इसी तरह से फिर है इनकम टैक्स। ये स्टैंडर्ड जो है अभी अपलोड होगा, क्योंकि इसमें भी मैंने बहुत बल्क रिवीजन करा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है एक अच्छी चीज को पेश करने में। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये आपको करना ही है। करना है या नहीं करना उसके बारे में चर्चा मैंने कहा अभी मैं कुछ लम्हों के बाद करूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं जरा टाइम को भी साथ साथ देखते जा रहा हूं, क्योंकि सामने टाइम वॉच को भी हमें ख्याल करना पड़ता है। उसके बाद है 17 लीजेस। अब जो पहले था इंड AS 17 उसको रिप्लेस कर दिया गया है, सभी को मालूम है। उसकी जगह इंड AS 116 आ गया है। इसका मतलब इंड AS 17 जो है वो डिलीटेड है। उसके बाद है सवाल जहां तक 18 का, भी कुछ लम्हा पहले मैंने कहा कि 18 का जो ताल्लुक है, जो कि पहले एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड AS 9 का कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड था, दोनों का ताल्लुक रेवेन्यू से था, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन से। नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय इंड AS 115। एक्चुअली जो इंड AS 115 है, इट इज बेसिकली मर्जर ऑफ इंड AS 11 एंड इंड AS 18। तो इसका मतलब इंड AS 11 और इंड AS 18 आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो अब डिलीटेड है, वो आपको अब नहीं पढ़ना है। फिर है एम्प्लॉय बेनिफिट्स। फिर उसके बाद है 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। देन है 23। इसका मतलब 22 कोई स्टैंडर्ड फिलहाल नहीं है। कहीं आप ये ना सोचे कि बीच में कोई चीज मिस है।
फिर IND AS 23 उसका ताल्लुक है बोरिंग कॉस्ट से, फिर 24 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड ऑफ कोर्स जॉइंट वेंचर्स, 29 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज। अब इस स्टैंडर्ड के आगे मैंने लिखा हुआ है नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, तो ये स्टैंडर्ड भी आपको नहीं करना है। उसका कारण ये है कि इस पे भी अभी इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं यूनानिमस नहीं है और इस पे बहुत सा वर्क और रीवर्क करा जा रहा है। उसके बाद है अर्निंग्स पर शेयर, फिर है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स एंड प्रोविजन, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स। उसके बाद थर्ड शीट में फिर मैंने क्या लिखा है, लेट्स हैव अ लुक। 38 इंटेंजिबल एसेट, 38 के बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर एग्रीकल्चर। बेसिकली ये बताने के पीछे एक तो रीजन ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कितने स्टैंडर्ड अभी तक टोटल हैं। तो अगर इन सबको आप टोटल कर देंगे ना तो टोटल 42 आएगा, यानी कि टोटल प्रिविलेंट IND AS 42 हैं, लेकिन उसमें से बहुत से स्टैंडर्ड आपको नहीं करने हैं और बहुत से स्टैंडर्ड डिलीट हो चुके हैं। अब इन सब का कंक्लूजन हम क्या निकालें, यहां देखें। सबसे पहले तो यहां तक मैंने पहले लिखा है IND AS which are not required to be done as no more part of syllabus। बेटे ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये आपको अब करने की जरूरत नहीं है, हालांकि इनके बारे में मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी जब मैं पढ़ रहा था उसी चीज को मैंने यहां पर अलग से भी लिख दिया है। जब मैंने सारे IND AS की रीडिंग ली तो मैंने आपसे कहा कि IND AS 29 जिसका कि ताल्लुक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज से है, इसी तरह 18 जिसका कि ताल्लुक रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन से है, और 17 जिसका कि ताल्लुक लीजेस से था, 11 जिसका कि ताल्लुक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से था, IND AS 114 जिसका कि ताल्लुक रेगुलर डेफरल अकाउंट से है, बल्कि रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट से है, IND AS 106 एक्सप्लोरेशन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड IND AS 104 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये स्टैंडर्ड अब डिलीटेड हैं, ये आपको नहीं करने हैं। कुछ तो डिलीटेड है, कुछ रिप्लेस हो गए हैं, और कुछ डिलीटेड फॉर द टाइमिंग इसलिए हैं क्योंकि इन पे मैंने कहा कुछ वर्क अभी चल रहा है। तो एक तो ये चीज मालूम होनी चाहिए। इसका मतलब जो 42 टोटल IND AS हैं उसमें से अगर मैं इन सब का टोटल कर दूं तो ये टोटल कितना आएगा, 7। तो इसका मतलब आपको ये 7 स्टैंडर्ड्स नहीं करने हैं। तो 42 में से 7 स्टैंडर्ड अगर आपको नहीं करने हैं तो इसका मतलब एटलीस्ट आपका वर्कलोड काफी कम हो गया। अब आपको 35 स्टैंडर्ड करने हैं। अब इन 35 स्टैंडर्ड से इफेक्टिवली आपको 35 करने हैं, लेकिन 35 में से आप देखेंगे कि आपके 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो इस तरह आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपको लगेगा कि आप जितना बड़ा इसको सोच रहे हैं दरअसल ये उतना बड़ा है नहीं। फिर मैंने लिखा है, पहले तो मैंने लिखा कि कौन से स्टैंडर्ड है जो आपको बिल्कुल नहीं करने। वो इसलिए नहीं करने क्योंकि वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, और क्यों नहीं है मैंने वो भी रीजन बताने की कोशिश करी। अब सेकंड स्टेप पे मैंने बताया कि कौन से IND AS ऐसे हैं जो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने लिखा है यहाँ पर चैप्टर रिलेटेड स्टैंडर्ड, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनका ताल्लुक चैप्टर से, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाते हैं जब आप चैप्टर करते हैं। और हमने बहुत विस्तृत तरीके से, बहुत डीपली और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के साथ, आई होप यू वुड एग्री टू अपॉन इट, हमने इनकी कवरेज करी है। IND AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन वेयर इन वी हैव कवर्ड नियर अबाउट 31 लेक्चर्स। IND AS 110 कंसोलिडेटेड। अगर आप लोगों ने जिनने हमारे कोर्स सब्सक्राइब करे हुए हैं सुपर प्रॉफ से, उन्हें नोट करा होगा कि अभी हाल ही में मैंने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करा है। हमने नए क्या बोलते हैं लेक्चर्स इसमें अपलोड करे हैं। हालांकि उसमें 2 लेक्चर मुझे और अपलोड करने हैं जिसका कि ताल्लुक चेन होल्डिंग से होगा। अदरवाइज मैंने पूरा चैप्टर ये रिवाइज करके उसमें डाला है। हालांकि रिवाइज करने के पीछे कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं थी। मेन रीजन ये था कि इससे पहले जो स्टैंडर्ड थे उस पर थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा था कि टेक्निकल क्वालिटी कम है। हालांकि ये जो मैंने लेक्चर्स अपलोड करे हैं ये भी मैंने घर की रिकॉर्डिंग से करे, इसका मतलब मैंने प्रोफेशनल स्टूडियो से रिकॉर्ड नहीं करे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें हमने थोड़ा डीप पेनिट्रेटिव और थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को और कंटेंट को कवर करा है। अगर आपने इससे पहले कंसोलिडेशन कर लिया था फिर भी मेरी एडवाइस है कि आप इनको जरूर देखें। इज इट क्लियर टू यू? अगर बाई चांस किसी की कोर्स वैलिडिटी खत्म हो गई है तो वो यूट्यूब पे भी मैं इन लेक्चर्स को रिलीज कर रहा हूँ। आप यूट्यूब पे मेरी चैनल संजय वेलकिंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें भी इनको पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट मैंने 4 या 5 लेक्चर्स ऑलरेडी इसमें अपलोड कर दिए हिंदी वर्जन में। करेक्ट, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में ही अपलोड हो रहा है यूट्यूब में, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो IND AS 103 जो स्टैंडर्ड है वो आपको ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ, तो उसमें आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। IND AS 110 कंसोलिडेशन है। मैंने कहा इसको हमने बहुत ही ज्यादा डीपली, इनफैक्ट जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर है हमने बहुत डीपली वाइड
इनफैक्ट वाइडेस्ट पॉसिबल कवरेज उनकी करिए, एंड आई सिंसियरली होप दैट यू टू वुड एडमिट ऑन दिस पर्टिकुलर काउंट, इजंट इट? IND AS 109, 107 एंड 32, ये जो 3 स्टैंडर्ड हैं, इन तीनों का ताल्लुक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, एंड वी हैव टेकन नियर अबाउट 39 लेक्चर्स टू कवर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, करेक्ट? बहुत सारे बच्चों ने नोट करा होगा कि जब मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करा तो मैं कई बार आपके सामने नहीं आ पा रहा था। इज इट क्लियर टू यू? मैं उसमें बिल्कुल शुरू में आपके सामने आता था, फिर मैं बीच में नहीं आता था, आपने उस बीच में नोट करा होगा। खैर, कई बच्चे सोचते सर उसमें कोई वीडियो में प्रॉब्लम तो नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि हम डिफरेंट इनपुट्स पे काम करते हैं, तो एक इनपुट काम नहीं करता है, तो इसलिए एक इनपुट को बंद करना पड़ता है, तो इसलिए कई मरतबा हम सामने नहीं आ पाते हैं। खैर, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इन तीनों का ताल्लुक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से है। ये एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चैप्टर है, और मेरी एडवाइस ये है, हम जितने भी चैप्टर्स करते हैं उनसे रिलेटेड जो आपके मॉड्यूल्स में चैप्टर्स दिए उनको भी आप करें, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि तकरीबन हमने मॉड्यूल का हर क्वेश्चन अपनी तरफ से कोशिश की है कि कवर हो और कोई 0.1% भी ना छूटे। लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर, मेरी एडवाइस ये है कि जो केस स्टडीज मैंने क्लास में कराई है आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को करें, उसके अलावा कुछ ना करें। उसके बाद IND AS 113, करेक्ट? फेयर वैल्यू मेजरमेंट, बहुत से लोग इसको सोचते हैं कि प्योरली बेसिकली एक स्टैंडर्ड है। बहुत से लोग भूल जाते हैं कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट हमें ऑलमोस्ट हर जगह उसकी जरूरत पड़ती है। तुमने देखा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फेयर वैल्यू कितने बार यूज हो रहा था, बिजनेस कॉम्बिनेशन में कितने बार यूज हो रहा था, कंसोलिडेशन में कितने बार यूज हो रहा था, इवन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी हो रहा था। तो ये अपने आप में एक चैप्टर सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड है, तो इसको भी आप बहुत ध्यान से करेंगे। IND AS 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, हालांकि थोड़ा सा बोरिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा बिकॉज इट्स क्वाइट एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने अभी कहा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक तो मैंने कंसोलिडेशन कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज कर दिया है, अगर कुछ बच्चों ने नहीं देखा है तो वो उसको जरूर देखें। उसके अलावा IND AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, इस चैप्टर को भी मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज कर दिया है, खासतौर से इन द लाइट ऑफ प्योरली 102 कुछ हल्की फुल्की अमेंडमेंट्स थी जो पहले कवर नहीं हो पाई थी, तो उनको हमने कवर करने के लिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कराए। कुछ पहले कॉम्प्लिकेशंस थी, कुछ कंट्रोवर्सीज थी, इसलिए हमें भी कहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ कमी है तो हम उसको पूरा करने के लिए रिवाइज करते हैं। इसका एक कारण ये भी था, करेक्ट? तो आप इसको जरूर देख लें। उसके बाद IND AS 111 का ताल्लुक जॉइंट अरेंजमेंट से है, ये भी एक तरीके से प्रैक्टिकल रिलेटेड चैप्टर है, करेक्ट? और 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन जॉइंट वेंचर, बहुत से बच्चे ना इसको इस चैप्टर को या इस स्टैंडर्ड को नेग्लेक्ट करते हैं। आप मान के चलो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि IND AS 103 या 110। तो इनफैक्ट 28 और 111 को आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, और ये भी बेसिकली चैप्टर ओरिएंटेड स्टैंडर्ड्स हैं। तो आपने देखा 42 में से 7 तो आपको करनी ही नहीं है, अब बच गए आपके 35 में से अगर मैं इन सब का टोटल कर दूं तो ये 9 स्टैंडर्ड हैं जो कि ऑटोमेटिकली रिलेटेड चैप्टर से कवर हो जाते हैं। इसका मतलब है अगर मैं 35 में से ये 9 भी माइनस कर दूं तो अब इफेक्टिवली मुझे कितने करने हैं? 26। सो इजी। तो स्ट्रेटेजी से हमारा मतलब ये है कि बेसिकली हमें मालूम होना चाहिए कि हम जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमारी परफेक्ट प्लानिंग क्या है। परफेक्ट प्लानिंग आपको तब पता लगती है जब आपको चीजों का सूक्ष्म ज्ञान होता है, जैसे कि कुछ लम्हा पहले मैंने कहा भी। तो now you have realized actually it is not as what we call wide as it seems, correct? अब मैंने जो बहुत से बच्चे मुझे तंग करते हैं, इससे थोड़ा सा ये बता दें कि कौन से स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। पहले तो ये कहना हल्का सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं अपने आप को, गलत होता है कि कौन से स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है और कौन से स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, खासतौर से इस लेवल पे। आप इस लेवल पे ये मान के चलें कि हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे इतना फोर्स कर देते हैं कि हमें उसके लिए फिर कुछ ना कुछ कहना पड़ता ही है। तो अपनी तरफ से जो मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे लगता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्मेडेबल स्टैंडर्ड है, हालांकि इसमें व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, रिस्पॉन्सेज अलग अलग हो सकते हैं और ओपिनियन भी अलग अलग हो सकते हैं। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से होंगे, जरा यहाँ पर आपको ध्यान देखना है, खासतौर से इस टेबल पे। सबसे ज्यादा जो आप स्ट्रेस करेंगे IND AS 101 पे करेंगे। IND AS 101 को भी मैं रिवाइज्ड फॉर्म में अभी अपलोड कर दूंगा। ये मैंने कहा बाय द एंड ऑफ दिस वीक जितने भी मैंने स्टैंडर्ड कहा है कि रिवाइज्ड फॉर्म में मैंने अपलोड करने, वो आ जाएंगे, करेक्ट? IND AS 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि हल्की फुल्की कुछ इसमें
मैंने एडिशंस करी हैं, क्योंकि पहले कुछ कारणों से नहीं कर पाए थे, क्योंकि पहले जब हमने ये इनकी रिकॉर्डिंग्स करी थी तो उस वक्त ना मटेरियल इतना अवेलेबल था, ना इस पे इतनी केस स्टडीज अवेलेबल थी। तो इन द लाइट ऑफ सम डेवलपमेंट ऑफ सम न्यू केस स्टडीज, तो इस पे हम अब कुछ नई केस स्टडीज अडॉप्ट कर रहे हैं और इसमें आप ज्यादा केस स्टडीज पाएंगे और ये स्टैंडर्ड आप रिवाइज्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। लेकिन 105 मैंने कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस इंडेस की लिस्ट है। 105 जिसका कि ताल्लुक नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल इन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से है। डेफिनेटली एंड श्योरली यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, ए प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। इंडेस 116 लीजेस रिसेंटली मैंने अपलोड करा है, हालांकि ओल्ड रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास पड़ी थी। समटाइम बच्चों को लगता है कि आप लेट क्यों कर रहे हो, तो उसका कारण यही होता है कि बेटर है कि चीज को सही तरीके से पेश करना बजाय सिर्फ पेश करना। करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी मटेरियल आपको दिया जाए तो वो मुस्तकम हो, बहुत पैरामीटर्स पर हो सिलेबस के, और सारी चीजों की कवरेज उसमें हो। खासतौर से लीजेस में मॉडिफिकेशन का पार्ट आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। यू कैन श्योरली एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन और केस स्टडी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। उसके अलावा फिर है इंड एस 115। आई नीड नॉट रिक्वायर टू टेल यू रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। बहुत से बच्चे जिन्होंने हमारा कोर्स सब्सक्राइब करा होगा उनको इंड एस 115 नजर तो आ रहा होगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो इंड एस 115 आप जब देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर मेरी एडवाइस ये है कि बाकी किसी भी स्टैंडर्ड की केस स्टडी के लिए आपको मॉड्यूल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मॉड्यूल की सारी केस स्टडीज कवर करी हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी एडवाइस आप लोगों को ये होगी कि इंड एस 115 जब आप करेंगे हमारे लेक्चर्स में जो केस स्टडीज है, हालांकि हमने बहुत सारी केस स्टडीज कवर करी हैं, करेक्ट, बहुत सारी, और मैंने लिख करके वो केस स्टडीज कराई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी आपको एक एडवाइस है कि इस स्टैंडर्ड को करने के बाद मॉड्यूल में दी हुई केस स्टडीज को भी आप अच्छी तरीके से करेंगे, करेक्ट, इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की। उसके अलावा इंड एस 113 में पहले ही बता चुका हूं कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट, हालांकि दोबारा यहां पर लिख दिया गया अनफॉर्चुनेटली, चलो कोई बात नहीं। इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितने भी स्टैंडर्ड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। फिर इंड एस 1 शेयर बेस्ड पेमेंट और फेयर वैल्यू, ये अनफॉर्चुनेटली दोबारा लिख दिए गए हैं। ये दोनों चैप्टर रिलेटेड स्टैंडर्ड हैं जो ऑलरेडी मैं पहले फर्स्ट पॉइंट में बता चुका हूं। AS1 presentation of financial statement is very very sound, very important, correct। उसके बाद फिर है 21 effects of changes in foreign exchange rates, effects of changes in foreign exchange rate। लेकिन उससे पहले मैं AS1 पे, इंड AS1 पे आ जाऊं, presentation of financial statement। बहुत से बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाने के लिए कहेगा तो मैं इस स्टैंडर्ड को नंबर 1 पे रखूंगा, करेक्ट। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट स्टैंडर्ड। आप इसमें से कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे करंट एसेट से रिलेटेड, करंट लायबिलिटी से रिलेटेड। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ये तो हम 11-12 से पढ़ते चले आ रहे हैं और ये बेहद इजी होंगे, आसान होंगे, इसमें क्या पढ़ना। ऐसा नहीं है। एट दिस लेवल समटाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली जज वेदर इट हैपेंस टू बी अ करंट एसेट और अ करंट लायबिलिटी। सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इस स्टैंडर्ड को मैं बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करूंगा, और रिवाइज कर करके मैंने कहा बाय द एंड ऑफ दिस वीक और at the most by next week you will find all these standards over there, correct। तो मुझे कुछ स्टैंडर्ड रिवाइज करने हैं जिसमें AS1 भी शामिल है, 12 भी शामिल है। तो ये दो स्टैंडर्ड अभी आपको हो सकता है नजर ना आ रहे हो, या नजर आ भी रहे हो तो उस फॉर्मेशन में ना नजर आ रहे हो। जिसमें 12 तो मैंने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया है अपलोड, लेकिन AS1 जो है वो मुझे करना है रिकॉग्नाइज, और 7 सॉरी, करेक्ट। 21 जो है वो इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट से है। बहुत हमने इसमें केस स्टडीज करी हैं, इस स्टैंडर्ड को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे, अब कई बच्चों को तो बड़ा सरप्राइज होता है कि मैंने इन्वेंट्रीज को भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड की स्टडी में रखा है। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि इन्वेंट्रीज जो है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड AS2 से रिलेटेड है, तो बहुत से बच्चों को लगता है कि ये स्टैंडर्ड बड़ा आसान है और ये तकरीबन हमें आता है। लेकिन बावजूद इसके मैं आपको एडवाइस करूंगा कि AS2 को भी आप नेग्लेक्ट ना करें, और AS2 में से यू कैन एक्सपेक्ट वेरी सरप्राइजिंगली अ केस स्टडी, करेक्ट। तो इन्वेंट्रीज यू गिव इक्वल प्रोमिनेंस, इट इज वन ऑफ द फॉर्मिडेबल व्हाट वी कॉल स्टैंडर्ड, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। 7 और 8 मैंने अभी हाल ही में रिवाइज करे हैं। मैंने कहा मुझे खास तौर से AS1 को रिवाइज करना था, AS7 को रिवाइज करना था। AS1 और 7 रिवाइज्ड फॉर्म में मैंने कहा इस वीक में या बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक में मैं अपलोड कर दूंगा। 7 और 8
तो 8 और 10 में रिवाइज कर चुका हूं। तो अभी आप फॉर द टाइम बिंग के लिए AS1 को मत पढ़ना, AS7 को अभी मत पढ़ना, उसको रिवाइज फॉर्मेशन में आप पढ़ेंगे। 8 और 10 जो है वो ऑलरेडी रिवाइज करी जा चुके हैं और बाकी जितने भी स्टैंडर्ड है वो ऑलरेडी रिवाइज फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। करेक्ट। ये स्टैंडर्ड में मैंने बहुत चेंजेस करे हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस और बहुत ज्यादा केस स्टडीज मैंने इसमें अब इंक्लूड कर दी हैं और AS10 में भी मैंने बहुत ज्यादा केस स्टडीज अब इंक्लूड कर ली हैं। तो रिवाइज फॉर्मेशंस में आप इनको पढ़ें, डेफिनेटली यू विल एक्सपेक्ट केस स्टडीज। सो ये इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड है। अब आपने देखा 26 हमारे स्टैंडर्ड बच गए थे, टोटल 42 थे, 42 में से हमें 7 करने नहीं थे, नंबर 1। 7 में से कुछ चैप्टर रिलेटेड स्टैंडर्ड से आपने देखा, इजंट इट और नॉट। अब चैप्टर रिलेटेड स्टैंडर्ड को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास 26 स्टैंडर्ड बचे। 26 में से भी अगर मैं इन 12 को हटा दूं तो मेरे पास कितने स्टैंडर्ड बचे? 14 स्टैंडर्ड बचे। और 14 स्टैंडर्ड के अंदर जो बचे हुए स्टैंडर्ड्स हैं, हालांकि इन स्टैंडर्ड्स पे आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगता है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपका जो भी टाइम लगेगा केवल इन्हीं स्टैंडर्ड्स पे लगेगा, क्योंकि बाकी चैप्टर रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं। उसके अलावा अब बच गया जो बचे हुए स्टैंडर्ड हैं 14, उन 14 स्टैंडर्ड्स में आपको ध्यान क्या रखना है, यहां ध्यान से देखें। यहां मैंने लिखा है क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट। करेक्ट। अच्छा, एक्चुअली यहां पर मैंने लिख दिया 12 क्योंकि ये 2 स्टैंडर्ड तो मैं पहले ही लिख चुका था ना, तो इसलिए इसको मैं यहां पर 10 कर देता हूं। तो ये कितने स्टैंडर्ड बच गए? तो अभी 16 स्टैंडर्ड आपके पास बच गए। ठीक है। अब इन 16 स्टैंडर्ड में से, क्योंकि 2 स्टैंडर्ड मैंने कहा वो ऑलरेडी पॉइंट नंबर 1 में कवर हो चुके हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने क्या लिखा हुआ है इसमें? क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब ये जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर ये क्वाइट इंपॉर्टेंट तो हैं, इसका मतलब इनको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, एट द सेम टाइम अच्छी बात यह है कि इसमें से जितने भी स्टैंडर्ड हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड की तरह है, तो आपका वक्त इसमें कम लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर इन स्टैंडर्ड में भी मुझे सिलेक्ट करने के लिए कहा जाए कि कौन से स्टैंडर्ड है जिस पे आपको ज्यादा स्ट्रेस करना है, तो ध्यान रखें, हालांकि मैंने बोल्ड में लिखा है। एक तो है इनकम टैक्सेस, बहुत डीपली, बहुत ज्यादा केस स्टडीज के साथ हमने इसकी कवरेज करी है। IND AS 12, IND AS 16, जो IND AS 16 है, IND AS 16 जो है, जो आपका एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड AS10 है, आपने देखा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम सुपरप्रॉफ्स में जो कोर्स अवेलेबल है उसमें मैंने AS10 अलग से दिया हुआ है। वो मैंने इसीलिए दिया हुआ है कि आप पहले AS10 कर लें तो आपकी ऑटोमेटिकली कवरेज PPE की हो जाएगी, क्योंकि PPE जो IND AS 16 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज नथिंग बट ऑलमोस्ट एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10। तो आप क्या करना, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 करना और उसके बाद आप इसकी कर्सरी लुक ले लेना। करेक्ट। ये 2 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इस पर्टिकुलर पार्ट में से जो क्वाइट इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं कि कौन से आपको पहले करने हैं, और इन 2 स्टैंडर्ड को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें, हालांकि छोटे स्टैंडर्ड है। आप फिलहाल, यकीन हो सकता है आपको अभी सर अजीब सी ये बात लगे, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर दैट one question from investment property and one question from agriculture will be tossed up in the examination. This is my personal opinion. अब ऐसा ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, ओपिनियन हेवायर भी जा सकता है, प्रिडिक्शन हेवायर भी जा सकती है, लेकिन वी होप दैट इट टर्न्स आउट टू बी वेरी ट्रू। तो अब जो क्वाइट इंपॉर्टेंट है उसमें पहले आप ये 5 स्टैंडर्ड करेंगे, इनको ध्यान से करेंगे। अब जो बचे हुए स्टैंडर्ड हैं उस पर आपका टाइम कम लगेगा, क्योंकि जैसे 38 है इंटेंजिबल एसेट। अब इंटेंजिबल एसेट इससे पहले भी आपने करा हुआ है, इजंट इट? आपने एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड AS 28 करा था, तो इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू दैट। तो इन स्टैंडर्ड में आपका वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा। इसी तरह से 37, जो कि एब्सोल्युटली एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 29 की तरह है। इससे पहले के फेजेस में अगर आपने AS 29 करा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, तो आपके लिए इस स्टैंडर्ड में टाइम कम लगेगा। प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स, इसमें भी हालांकि क्वेश्चंस के चांसेस एग्जामिनेशन में बनते हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, करेक्ट। तो इंटेंजिबल एसेट, सॉरी, इससे पहले मैंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड AS 26 इससे डील करता था, और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट इससे पहले जो था वो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड 28 डील करता था, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट।
इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये आपने एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड AS 25 में पढ़ा हुआ है, तो आपका टाइम इसमें कम लगेगा। अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा लंबा स्टैंडर्ड जरूर है, इसमें बहुत सारी केस स्टडीज नियर अबाउट 30 के करीब हमने केस स्टडी 33 के करीब केस स्टडीज कवर करी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड टफ नहीं है, क्योंकि आपने इससे पहले एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड 20 करा हुआ है, तो आपके लिए इसको समझने में मुश्किलें कम आएंगी। इसलिए मैंने कहा कि ये जो सेक्शन है जिसमें मैंने लिखा क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि सर AS12 को मैंने मोस्ट फॉर्मिडेबल की श्रेणी में क्यों नहीं रखा। देखो क्या होता है, कई बार चीजों को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। एग्जामिनेशन में कई बार जहां बहुत जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जनरली उसमें से क्वेश्चन एग्जैक्टली आएगा या नहीं आएगा ये दावे से नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए इस स्टैंडर्ड को मैंने फॉर्मिडेबल स्टैंडर्ड की श्रेणी में ना रख करके क्वाइट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा है, नंबर 1। लेकिन आप जब इस सेक्शन को करेंगे तो उसमें भी इन स्टैंडर्ड को आपने पहले ध्यान में रखना है, करेक्ट। उसके बाद है फिर 20, जो कि आप इससे पहले कर चुके हो, AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर्स, और तकरीबन वही है, कुछ डिफरेंस है। इसी तरह से 23 बोरोइंग कॉस्ट, हार्डली एनी चेंज, और 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। तो अब 16 बचे थे, 16 में से ये 13 स्टैंडर्ड अगर मैं माइनस कर दूं तो कितने बच गए? 3। आपने बेसिकली क्या देखा कि जितना वाइट सोच रहे हैं उतना वाइट है नहीं, करेक्ट। अगर आप ध्यान से स्ट्रेटेजी बनाएं, मैंने क्या कहा, टोटल 42 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। एक बार मैं पुरानी शीट्स को आपके सामने रख दूं। जब ये तो थी शीट नंबर 1, इनफैक्ट यहां से हमने स्टार्ट करा था शीट नंबर 1, जिसमें कि ये चीजें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद शीट नंबर 2 में भी लिस्ट थी, और मैंने जब ये शीट थर्ड शीट पे मैं पहुंचा तो मैंने बताया टोटल 42 स्टैंडर्ड हैं। 42 में मैंने आपको बताया कि 7 ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको करने ही नहीं है, करेक्ट। क्यों नहीं करने उसका रीजन हम दे चुके हैं। 42 में से 7 अगर हम हटा दें तो वी आर लेफ्ट अप विद ओनली 35, so we are supposed to do only 35, and out of 35 9 will be automatically what we call completed. We need not require to put up any separate efforts for the same, so we shall be left up with only 26. अब जो 26 बचे हैं, उन 26 में इन स्टैंडर्ड्स पे हमें मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। 101, 105, 116, फिर 115, 113। एक्चुअली ये दोबारा से आ गया, इसको मैं हटा ही देता हूं। 113 और ये 102, 115, फिर 1, 21, 2, 7, 8 एंड 10। मैंने कहा 8 और 10 मैंने रिवाइज्ड फॉर्मेट में डाल दिए हैं। मैं अभी लिख दूंगा कि और कौन से स्टैंडर्ड है जो रिवाइज्ड फॉर्मेट में मैं डालूंगा, जिसमें एक तो IND AS 101 होगा, और एक IND AS 1 होगा, और एक 7 होगा। ये 4 स्टैंडर्ड मैंने अभी रिवाइज्ड फॉर्मेट में डालने हैं, करेक्ट। तो इन सबका अगर हम टोटल कर दें तो ये 10 स्टैंडर्ड बनते हैं। 20 में से हम 10 हटा दें तो 16 स्टैंडर्ड हमें करने हैं। अब 16 स्टैंडर्ड में से भी जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हैं, जो क्वाइट इंपॉर्टेंट हैं, उसके अंदर भी मैंने कहा कि आप पहले इन 5 स्टैंडर्ड्स को करेंगे, उसके बाद आप बचे हुए स्टैंडर्ड करेंगे। लेकिन बचे हुए स्टैंडर्ड में मैंने आपको ये भी बताया कि आपका वक्त कम लगेगा, क्योंकि उसके बारे में आप ऑलरेडी इससे पहले के फेजेस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब जो बच गए स्टैंडर्ड विच कैन बी लेफ्ट, यानी कि 3 स्टैंडर्ड बचे हुए थे, और ये तीनों स्टैंडर्ड आप छोड़ सकते हैं। 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हार्डली 1 या 2 पेज का स्टैंडर्ड है। ये सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी, इसका ताल्लुक सिर्फ डिस्क्लोजर से, टेक्निकल भी डिस्क्लोजर से रिलेटेड कुछ पूछते नहीं है। ऑपरेटिंग सेगमेंट में से मुझे डाउट है कि वेदर एनीथिंग वुड बी आस्क्ड। रीजन इज दैट बिकॉज लॉट ऑफ वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। हालांकि ये अभी सिलेबस का पार्ट है, नो डाउट अबाउट दैट, ये सिलेबस का पार्ट है, बट लेकिन इस पर भी इंटरनेशनल बॉडीज वर्क कर रही हैं। तुमने देखा जब मैंने शुरू का पहला पेज पढ़ा था, मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं था कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या डिलीटेड है या नहीं है, ये करना है या नहीं है। सिंसियर एडवाइस है, अगर मुझे ऑप्शन दिया रहे और मुझे ये पता हो कि इस पर रिवीजन वर्क अभी चल रहा है, तो आई डाउट वेरी मच वेदर द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर। तो मेरा अपना मानना ये है कि आप इन 3 स्टैंडर्ड को छोड़ सकते हो। तो आपकी IND AS की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, मैंने अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश करी है कि कौन से IND AS, क्योंकि बहुत से बच्चे तकरीबन हर दिन ये मैसेज करते हैं कौन से IND AS करने हैं, कौन से IND AS नहीं करने हैं, और इन IND AS को कैसे करना है। तो मैंने अपनी तरफ से अब आपको एक स्ट्रेटेजिकल एक्शन प्लानिंग आपके सामने रखी है। तो इस तरह से अगर आप मूव करते हैं तो मुझे इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है कि यू आर गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम। तो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने बताया ये भी कि IND AS 101 को मैं रिवाइज्ड फॉर्मेट में करूंगा, करेक्ट। IND AS 101 के बाद फिर IND AS 1 को भी मैंने अभी रिवाइज्ड फॉर्मेट में डालना है, और 7 को भी मैंने रिवाइज्ड फॉर्मेट में डालना है। ये 3 तो मैंने रिवाइज्ड फॉर्मेट में डालने ही हैं। और अगर
टाइम अलाउ करता है तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एफर्ट टू रिवाइज इवन 115. लेकिन इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बाकी इनके अलावा 3 स्टैंडर्ड के अलावा जितने भी स्टैंडर्ड आपके पास मौजूद हैं, आप लेक्चर के अंदर जो केस स्टडीज दी हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ें. आप मॉड्यूल को टच नहीं भी करते हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू बी एट रिस्क. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने सारी केस स्टडीज में कवर करी हुई है. लेकिन इंड एस 115 में मैंने इसीलिए कहा क्योंकि अब कुछ नई केस स्टडी उसमें एडिशन हुई हैं जो जिस वक्त हमने ये स्टैंडर्ड कराया, करेक्ट, तो उस वक्त वो केस स्टडीज नहीं थी. हालांकि उस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग मॉड्यूल में मुझे नहीं लगता 10-12 से ज्यादा केस स्टडीज थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसमें करीब काफी ज्यादा केस स्टडीज कराई हैं. तो वैसे तो वो कोई स्टडीज इनफ हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आई वुड एडवाइज यू टू हैव ए लुक ओवर दी व्हाट वी कॉल मॉड्यूल. इस केस में आप मॉड्यूल को भी देख लें तो यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन, यू विल बी ओवर द सेफर साइड. तो ये था इंडियस के बारे में. अब इंडियस में से रिलेटेड, अगर इंडियस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किसी स्टैंडर्ड को लेकर के अगर आपको लगता है क्या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज इट एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट फ्रॉम हियर. करेक्ट? Thank you everyone. I guess this is a most beneficial session for everybody. Hello, you have every right to raise any questions in case if you have. Sir, one question is related to as you has explained about IND AS. So people are asking what is there any session about AS as well? Will there be any session with respect to AS? Yes, right, sir. Accounting standard, you need not require to worry. Actually, accounting standard is, to be very honest, not part of the syllabus. And only IND AS is very much part of the syllabus. So you need not require to what we call worry on that particular account. So obviously, we need not require any session with respect to that. Of course, we will talk about AS, but that will be the session which we will take purely for the CMA students. I guess if there is any other question, you guys can ask over a chat or you can raise your hand. We can directly connect you with the Professor Sanjay Welkins. So probably there is no another question which I can see, sir. So thank you very much. And guys, we will definitely connect you tomorrow and we'll continue with this session. Thank you so much. Hope you must have enjoyed, and it was very nice and pleasurable to actually meet and connect with you through this particular live session. I'm extremely thankful to SuperProfs for arranging what we call such interacting what we call sessions. And surely SuperProfs is doing its level best efforts among the student fraternity and very popular site and under the guidance of what we call Juhi Gupta. CEO Juhi Gupta, and with the tremendous efforts of what we call Satyam Mishra, this particular session I hope must have come up to your expectations. So on such note, we take leave of you and good night. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, students, and have a nice evening.